the next section, which we talk about as the sentence formation. Now it's very important for you to understand. You've understood grammar, you have understood some vocabulary. Now you can think in English also, but how should I start my sentences? How should I make a sentence? What sequence of words makes a good sentence? Let's start with a few tips before we go into the science of sentence formation, because we will also look at some detailed science of sentence formation, because this is very important for you to understand what sequence that you follow helps you make a sentence appear good. Few tips that I want to give you: start with a greeting. Whenever you meet somebody, start with a good morning, how are you doing today, how's the weather in your country today. If you're speaking to somebody international, talk about how was your weekend, stuff like that, because this eases out the tension between the two people. So whenever you're communicating, this is very, very important to ease the initial tension. So first thing, ease it out. Second thing, especially for people who do not speak the language very well, छोटे सेंटेंसेस बनाइए, ज़्यादा लंबा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश मत करिए. क्लियर सिचुएशन है कि अगर आप लंबे सेंटेंसेस बनाते हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग और गेटिंग रॉन्ग वर्ड्स टेंसेस बढ़ जाता है. कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट. आई नीड योर हेल्प टुडे, कैन यू हेल्प मी. कीप योर सेंटेंसेस स्मॉल बिकॉज इट विल हेल्प यू कम्युनिकेट विदाउट मेकिंग मच मिस्टेक्स. कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बहुत ही लंबा सेंटेंस बनाना है. आप छोटा सेंटेंस बनाकर भी आपकी बात पहुंचा सकते हैं. वही तो कम्युनिकेशन का स्किल है. तीसरी बात आती है, धीरे धीरे बात करिए. अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं है तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आपका i7 या i9 का प्रोसेसर जो है वो लोड हो जाता है आपके ट्रांसलेशन में. मन में आपके चल रहा होता है कि मैंने अपने हिंदी से लिया इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, फिर मैंने बोलना शुरू कर दिया, फटाफट फटाफट मैंने बोल दिया. व्हेनेवर यू आर डिलीवरिंग सेंटेंसेस वेरी क्विकली, your mind is not able to react to if anything else is asked, right? For example, you're asking somebody, I want to go to pay my bill, I don't know where is the account. That person will tell you that you are not come to the right counter. So now your mind is stuck. That's why try to speak slowly. Whenever your communication is not that great, try to speak slowly. You will notice that especially people who do not know the language are the ones who try to speak very slowly. It's okay. Most important is to communicate the message, and another thing is that you should not go wrong. See, if I'm showing off by speaking fast, but if I'm wrong, people will laugh at me. But if I'm slow, there is a high probability if I speak correctly, they will appreciate. Okay, he's speaking slow, but he's speaking correct. So this is how you gain into the science of formation of a sentence. Let's move on to the next thing, what I call as the science or the grammar science of a sentence. If we are using a particular sequence of subject verb, subject verb object, subject verb adjective, subject verb adverb, subject verb noun, if we are using a particular sequence, we are bound to sound grammatically correct. We will take up a few examples, because if I tell you subject verb object subject verb, you will get confused that ये कोई ऐसा कोई formula है क्या. Actually there is a science of grammar that's running behind it. If you follow a certain sequence, the message is correct and you will be understood by the other party, and you will have less doubts, less questions that come to you. Correct? So let's take up an example of each sequence. हर सीक्वेंस को हम लोग देखेंगे कि इस सीक्वेंस को कैसे यूज करके बेहतर इंग्लिश स्टेटमेंट बनाया जा सकता है. लेट्स मूव ऑन. फर्स्ट इज सब्जेक्ट वर्ब. अब एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं जहां पर एक सेंटेंस है, जेन वॉक्स. यहां पर जेन जो है वो एक सब्जेक्ट है एंड इज फॉलोड बाय अ वर्ब. देखो ये एक्टिविटी कर कौन रहा है, ये एक्टिविटी कर रहा है सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट होता है, जो इंसान है, राइट, या जो नाउन है, वो ये एक्टिविटी कर रहा है. सो दिस बिकम्स अ वेरी शॉर्ट सेंटेंस, जेन वॉक्स. बट अगर आपको इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बनाना है, थोड़ा सा मोर
इलेबोरेट या मोर एक्सप्रेसिव बनाना है तो वर्ब के साथ एक एडवर्ब भी ज्वाइन कर दें। ये जो एडवर्ब क्या चीज़ होती है, एडवर्ब ये चीज़ होती है जो आपके वर्ब को चार चांद लगा देती है। वो एक नींबू मारने वाली बात है आपके वर्ब के ऊपर। जब मैंने सेंटेंस सुना जेन वॉक्स क्विकली, तो मुझे ये पता चला कि जेन जो है चलता तो है पर बहुत ही फटाफट चलता है। तो जेन के बारे में मुझे दो चीज़ें पता चल गई कि पहले जेन चल सकता है तो उसकी एक्टिविटी है वो कर रहा है, एंड जेन फटाफट भी चलता है। तो जो एडवर्ब आपने ऐड किया तो आपके मन में एक इमेज आ गई। कम्युनिकेशन शुड बी एबल टू बी अब्सॉर्ब्ड इन द माइंड एज एन इमेज। थिंक ऑन दैट। नेक्स्ट, कमिंग टू द पार्ट, if you add a time, Jane walks all morning. Now this is referring to the subject, verb and time, right? If you add that, you are giving more meaning to the sentence. इसके को और भी कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन जिसको हम समझेंगे कि ये सीक्वेंस हमको एक बेहतर स्टेटमेंट बना कर देता है। The next sequence that is important is the subject verb object. जो subject verb object होता है सीक्वेंस, ये एक तो गोल्डन रूल है ऑफ ग्रामर। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉलो करने की कोशिश करेंगे ना तो आपका सेंटेंस गलत जाने के बहुत कम चांसेस हैं। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो दैट सीक्वेंस। आपके मन में शुरुआत में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी कि भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे सीक्वेंस कैसे फॉलो करना, बट धीरे धीरे जब आप ये चीज़ को समझेंगे तो आपको आदत सी पड़ जाएगी। इट्स नॉट दैट यू विल हैव समथिंग लाइक दिस कि भाई ये ऐसे ही फॉलो करना है क्या, इतना मुझे ध्यान रखना है क्या, वो आपके खून में आ जाएगा, आपकी स्ट्रीम में आ जाएगा, आप कंटिन्यूसली वही फॉलो करेंगे। लेट्स टेक दिस एग्जांपल दैट शी इज़ प्लेइंग अ पियानो। व्हेन वी टॉक अबाउट शी इज़ प्लेइंग अ पियानो, अब यहाँ पर शी क्या है, शी सब्जेक्ट है बिकॉज शी इज़ द वन जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्लेइंग इज़ द वर्ब हियर, अ पियानो इज़ द ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सीक्वेंस आपने रखा तो आपका सेंटेंस लॉजिकल होगा। अब एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप इसमें से वर्ब को इंटरचेंज कर देते हैं तो प्लेइंग शी पियानो ये तो पूरी तरह गलत ही साउंड कर रहा है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को भी पीछे कर दिया कि पियानो शी इज़ प्लेइंग, अब ये भी थोड़ा सा कुछ लोगों को लगे कि सही साउंड कर रहा है, बट ये सही इंग्लिश नहीं है। बेस्ट फॉर्म इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन विच यू विल फाइंड शी इज़ प्लेइंग अ पियानो। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, पहले बेसिक्स क्लियर कर लिए, अब थोड़ा सा एडजेक्टिव ऐड करेंगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव ऐड करेंगे। शी इज़ प्लेइंग द पियानो ब्यूटिफुली। अब ये जो ब्यूटिफुली पार्ट क्या है, ब्यूटिफुली है पियानो वो किस तरह बजा रही है। पियानो तो बजा तो रही थी लेकिन बेहतरीन तरीके से बजा रही है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन हो गया ये एक वर्ब को एडिशनल चीज़ देने के लिए आ गया, जैसे ब्यूटिफुली शी इज़ प्लेइंग। सो ये आपको एक एडजेक्टिव हमने ऐड कर दिया तो आपको थोड़ा सा सेंटेंस थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन गया, थोड़ा सा अटेंटिव लगा, आपको ये सेंटेंस सुनने में बड़ा मज़ा भी आया, सो यू कुड हैंडल इट। सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर सीक्वेंस दैट आई वांटेड टू टेल यू। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव है, इसका एग्जांपल आपने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव को अगर हम लोग सेंटेंस लेते हैं, ही इज़ हैंडसम, शी इज़ ब्यूटिफुल, बहुत ही सिंपल था ये, राइट? सब्जेक्ट वर्ब एंड एडजेक्टिव। ही द सब्जेक्ट, वर्ब इज क्या होता है, एग्जिस्टेंस, आपका एग्जिस्टेंस इज, हैंडसम इज द एडजेक्टिव दैट इज डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एन एडजेक्टिव डूइंग, डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट। इट इज ट्राइंग टू tell you more information about that person. Now you could also use some adverbs. He is very handsome, she is very beautiful. जो very है वो थोड़ा सा adverb है, उसकी existence को थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है कि वो बहुत ही बेहतर है, बेहतर नहीं बहुत बेहतर है, तो जो बहुत है वो आपका adverb हुआ। Let's look at another sequence. जो नेक्स्ट सीक्वेंस मैं आपको बताना चाहूँगा वो है सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब। ये भी आपने थोड़ी देर पहले एक्सपीरियंस किया जब हम यूज़ कर रहे थे कि किसी भी सेंटेंस को और ज़्यादा बेहतर करना है तो आपको वर्ब के आगे एक एडवर्ब लगाना है। जैसे कि द गर्ल वॉकड अवे क्विकली, राइट? सो अगर आप ये सेंटेंस को करेंगे तो अगर आपने ये वाला सेंटेंस देखा कि द गर्ल स्लोली वॉकड अवे, अब जो स्लोली है ये एक एडजेक्टिव है जो उसकी वॉक को डिस्क्राइब कर रहा है, करेक्ट?
तो इस तरीके से आप लोग सीक्वेंस को यूज कर सकते हैं. द गर्ल वॉकड अवे. अब ये जो एडवर्ब है वो कह रहा है कि वॉक तो वो कर ही रही थी, बट शी वॉज मूविंग अवे ऑल्सो. दैट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू दिस वर्ब ऑफ वॉकिंग. सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब, ये भी जो सीक्वेंस है ये भी एक अच्छा सीक्वेंस है. अगर आप यूज करते हैं रेगुलरली तो आपकी इंग्लिश का सेंटेंस सही रहता है. Let's move on to the another sequence that we generally find in sentence formation, that is subject verb noun. Subject verb noun. Subject क्या होता है, जिसे हम रेफर करते हैं. Verb एक्टिविटी होती है. नाउन है वो क्या है, क्या उसकी कोई पोजीशन है. जैसे आपने यहाँ सेंटेंस देख रहे हैं, द प्रोफेसर इज अ वुमन. द प्रोफेसर, दिस इज द सब्जेक्ट. इज द एग्जिस्टेंस, है, a woman, correct? Now the woman here is the noun because she is not describing the professor. The professor is a woman. So इसके लिए subject verb noun. अब यहाँ पर हम लोग कुछ adverbs या फिर कोई adjectives भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जब भी आप you look at this example, wherever you are talking about the adjective of intelligent, the professor at the university is an intelligent woman. Now this is the use of adverbs and adjectives. So this becomes a sequence that you can use. Why I'm insisting on understanding these sequences, because whenever we read a sentence and we find that this sentence is not sounding correct या फिर ये कुछ अलग sound कर रहा है, तो look back at these sequences. Are we using the right sequence? If we are using the right sequence,